Hello everyone, welcome to this Scribble revision series where we will do today demand and recovery. When we talk about demand and recovery, demand कब कब हमारे से गवर्नमेंट मांग सकती है. Demand is what? Government is demanding something for the things which we did wrong. So what wrong we did? So they can demand us in 4 things. या तो हमने टैक्स पे नहीं किया है, टैक्स नॉट पेड, ओके, या फिर टैक्स वी हैव शॉर्ट पेड, या फिर वी हैव टेकन रॉन्ग टैक्स erroneously refunded, wrong refund we have taken, okay. And the other is when we have wrongly availed ITC. Now here when we say wrongly availed ITC, if the question is for 4 marks you can finish it here, but if the question is for 5 marks you can put one more point, which is ITC wrongly utilized. ITC wrongly utilized. So these are the reasons where the demand on us can be imposed. Okay, now what are the conditions? Okay, see, we can have two conditions. We used to have two conditions under section 73 and under section 74, but now as per the amendments there is 74A. What is difference between these three, and are these applicable now, or is only 74A applicable? I will answer to all the questions. Okay, so listen everyone. When we talk about 73, the notice was issued under section 73 for the bona fide mistakes. For the bona fide mistakes. Under 74, the notice used to issue for the fraud, means intentional mistakes. And under 74A, it is issued for both. What used to happen earlier was, if we issue the notice under section 74 and the assessee claims in the court that no, the mistake was not due to fraud, it was not intentional, जो मेरी गलती थी वो जानबूझकर मैंने नहीं की थी, है ना, it was a bona fide mistake, I did that by mistake. So in that case what the court used to say is that कि चलो ठीक है, आपके जो 74 का जो नोटिस इशू हुआ है आप उसको 73 का नोटिस मान लीजिए, ओके, वी विल नॉट इशू द फ्रेश नोटिस अंडर सेक्शन 73. लेकिन जो टाइम लिमिट होती है ना नोटिस इशू करने की, दैट इज अंडर सेक्शन 73 इज योर 2 years and 9 months. Under section 74 it is 3 years 6 months. This is the time limit for issuance of notice. This is the time limit for notice. तो जब आप सेक्शन 74 में इशू करोगे तो हो सकता है ना कि वो सेम नोटिस जो है वो हमारे सेक्शन 73 के हिसाब से टाइम बार्ड हो चुका हो. तो इस केस में जो नोटिस थे वो टाइम बार्ड हो जाते थे और जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो लॉस्ट हो जाता था. तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ को अवॉइड करने के लिए, विच इज़ नाउ एप्लीकेबल ऑनवर्ड्स 24-25. अब जो भी ट्रांजैक्शंस अब हमारे पास में आते हैं वो सारे सेक्शन 74A में ही फॉल करेंगे. तो क्या अब हमको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? आइडियली तो नहीं है, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रीवियस ईयर्स से रिलेटेड अगर आता है तो वहाँ पे आपको 73 एंड 74 सेक्शन ही लगाना पड़ेगा. तो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 74A, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस? सो द टाइम लिमिट इज 42 months. Okay, the time limit is here is given in months. Okay, now when we talk about this is the time limit for issuance of notice. Now what is the time limit for order? तो यहाँ पे आता है हमारे 3 महीने के अंदर अंदर हम ऑर्डर कर सकते हैं, दैट इज़ 3 years. ओके, यहाँ पे हम कर सकते हैं विद इन 6 months, विच इज़ 4 years. सो दिस 3 months from the issuance of notice, 6 months from the issuance of notice, and here the limit has been given us for 12 months. When I say the limit is 12 months, it can be extended by 6 months. So this extension is only provided here in section 74A. I hope this is clear. This is the time limit for issuance of order. Okay. Now let us talk about any tax which you have collected but you have not paid to the government. अभी आपने जब टैक्स कलेक्ट कर लिया लेकिन आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, उस केस में कोई लिमिट नहीं होगी नोटिस इशू करने की. नो लिमिट फॉर नोटिस. बट आप जब भी नोटिस इशू करो तब से 1 year के विद इन आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा. और अगर हम लोग बात करें सेल्फ असिस्ट टैक्स नॉट पेड, व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्फ असिस्ट टैक्स जो हमने पे नहीं किया है, तो इस केस में हमको नोटिस इशू जो है, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी शो कॉज नोटिस. ओके, डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग्स विल बिगिन. मतलब अगर आपने सेल्फ असिस्ट टैक्स को पे ही नहीं किया है
आपने असेस किया, आपने निकाला, यू डिड नॉट पेड इज गिवन. सो इफ़ यू हैव नॉट पेड तो कोई नीड नहीं है शो कॉज नोटिस इशू करने की, डायरेक्टली रिकवरी की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं. तो अब यहाँ तक अगर हमको सब कुछ समझ आ गया है तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द लिमिट एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्सेस पेनल्टीज विच यू हैव टू पे इन केस ऑफ these in case of section 73, 74 and 74A. Let us start with section 73 and 74. Okay, we are not skipping this section also because what if it comes. So अपन लोग कोई भी रिस्क नहीं लेके चलेंगे, ठीक है ना. तो अगर आप बिना किसी नोटिस, जब आपका इशू नहीं हुआ है अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से, और अगर आप बिफोर द इशुएंस ऑफ नोटिस अगर आप टैक्स जमा करा देते हो तो अंडर सेक्शन 73 कोई भी पेनल्टी टैक्सेस नहीं लगेंगे. और अगर अंडर सेक्शन 74 अगर आप बिफोर एनी इशुएंस ऑफ नोटिस अगर आप टैक्स जमा करा देते हो तो सो इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 74 हमको 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट जो है वो जमा कराना पड़ेगा अगर हम लोग बिना नोटिस इशू हुए पहले जाके खुद से अपना फ्रॉड को कबूल करते हुए टैक्स पे कर देते हैं अगर तो. ओके, अब नोटिस इशू हो गया है और नोटिस इशू होने के 30 डेज़ के अंदर अगर हम लोग क्या कर देते हैं, अगर 30 डेज़ के अंदर अगर हम लोग 73 में टैक्स जमा करा देते हैं तो हमको फिर से कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है. लेकिन इन केस ऑफ सेक्शन 74 हमको पेनल्टी लग जाती है 25% ऑफ टैक्स अमाउंट की. डू नॉट फॉरगेट टू राइट सेक्शन. ओके, अब नोटिस इशू होते हुए हमें 30 डेज़ हो गए हैं. नाउ ऑर्डर आ गया है. अब अगर ऑर्डर आ गया है तो 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर हायर का हमको क्या लग जाएगा, यहाँ पर हमको पेनल्टी लग जाएगा. और अंडर सेक्शन 74 हमको सेम चीज़ के लिए 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट जो है वो पेनल्टी लग जाएगा. टैक्स तो हमको पे करना ही है, उसके ओवर एंड अबव हमको कितना पे करना है, दिस इज़ दैट. और अगर ऑर्डर भी आ चुका है, ऑर्डर आए हुए भी हमारे 30 डेज़ लैप्स हो गए हैं, 30 डेज़ लैप्स हो गए हैं और फिर भी आपने नहीं अगर पेमेंट किया है तो यहाँ पे भी आपको इन द केस ऑफ सेक्शन 73 भी 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 का जो है वो पेनल्टी लग जाता है. लेकिन इन केस ऑफ सेक्शन 74 अब आपको 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट जो है वो पेनल्टी पे करना पड़ेगा. आई होप दिस इज अंडरस्टूड क्लियरली. अब हम लोग आते हैं सेक्शन 74A की बात करेंगे. अगर हम लोग सेक्शन 74A की बात करते हैं और अगर सेक्शन 74A जो है ना, इट इज़ गिविंग यू नोटिस अबाउट बोथ द सिचुएशंस व्हेन इट इज़ अ बोनाफाइड मिस्टेक ऑल्सो, when it is a bona fide mistake or error also and when it is a case of fraud also. तो इन दोनों ही केसेस का नोटिस जो है वो सेक्शन 74A में आता है. तो when this happens तो हमारे पास में जो टाइम लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं. ओके, अगर आप बिफोर ऑर्डर कर देते हो, बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस अगर आप पे कर देते हो इस केस में भी तो भी आपको यहाँ पे कोई नहीं लगती है पेनल्टी. लेकिन इन द केस ऑफ फ्रॉड आपको यहाँ पे जो पेनल्टी लगती है इट इज़ 15% ऑफ टैक्स. ओके. एंड नाउ अगर हम लोग नोटिस इशू होने से 60 days is the highlight. Earlier it was 30 days but in section 74A it is 60 days. नोटिस इशू होने के 60 days के अंदर अगर आप पे कर देते हो तो भी यहाँ कोई पेनल्टी नहीं लगती है. लेकिन इन द केस ऑफ फ्रॉड यहाँ पे आपको 25% ऑफ टैक्स पेनल्टी लग जाती है. एंड इन द केस व्हेन वी टॉक अबाउट के ऑर्डर आ चुका है, अब ऑर्डर आ चुका है, अभी भी आपने नहीं पे किया है तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज़ हायर. इन द केस ऑफ फ्रॉड इट विल बी 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट. अब ऑर्डर आने का भी आपके 60 डेज़ लैप्स हो चुके हैं, 60 डेज़ लैप्स हो चुके हैं. इस केस में भी इन द केस ऑफ बोनाफाइड मिस्टेक्स इट्स 10% और 10,000 विच एवर इज हायर एंड इन द केस ऑफ फ्रॉड इट विल बी 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट. ओके, सो जस्ट यू कैन हैव अ लुक अगैन फॉर द सेम एंड सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इफ़ आपने तो बोल दिया कि हमको टैक्स पे करना है, आपने तो बोल दिया हमको पेनल्टी पे करना है, लेकिन अगर हम टैक्स और पेनल्टी अगर पे ही नहीं कर पा रहे हैं तो अब आप गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट क्या कर लेगा. तो जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट करता है रिकवरी. द नेम ऑफ चैप्टर इज ऑल्सो डिमांड एंड रिकवरी. अभी हमने डिमांड क्या है वो हमने देख लिया, अब रिकवरी कैसे करेगा डिपार्टमेंट अब हम वो देखेंगे. तो जो रिकवरी है वो करने के हमारे पास में वेरियस मेथड्स हैं. हाउ कैन वी सिंप्लीफाई इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट एंड इन ऑर्डर टू रिमेंबर इट फॉर द एग्जाम. तो रिकवरी कैसे करेगा. हो सकता है जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, जो भी ड्यूज़ हैं गवर्नमेंट के पास, जो उनको हमें देना है. आई एम राइटिंग इन हिंदी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ओके, देखिए अगर कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिससे हमें पैसे लेने हैं, मीन्स गवर्नमेंट के पास हमारा पैसा है जो गवर्नमेंट को हमें रिफंड करना है, तो ऐसा पैसा जो है अब वो गवर्नमेंट हमको रिफंड नहीं करेगी, उस पैसों को अगेंस्ट द रिकवरी यूज़ कर लेगी. ओके, सेकेंड क्या कर सकती है गवर्नमेंट हमारे गुड्स को डिटेन कर सकती है
और साथ में सेल कर सकती है। हमारे कोई भी गुड्स जो हमारी अमानत है, जो हमारे पास हैं, उन गुड्स को गवर्नमेंट डिटेन कर सकती है। डिटेन मीन्स अपने पास रख सकती है और उसको बेच सकती है। उसको बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे जो है उसको जो है वो रिकवरी में लगा सकती है। ओके, थर्ड क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट, हमारे डेटर्स से जो पैसे हैं ना, अब वो हम नहीं कलेक्ट करेंगे, वो हमारे बिहाफ पर गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी और उन पैसों का यूज़ करके जो गवर्नमेंट है वो अपने जो ड्यूज़ हैं उनको पूरा करेगी। उसके बाद में जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमारी जो लैंड है ना, हमारी ज़मीन, जायज़ाद जिसे हम कहते हैं, तो जो भी हमारी ज़मीन है उसको क्या कर सकती है गवर्नमेंट, डिस्ट्रेन कर सकती है। डिस्ट्रेन मीन्स व्हाट, डिस्ट्रेन्स मीन्स वो अपने पास में उसका राइट टू सेल होल्ड करके रख सकती है अप टू 30 डेज़। और अगर आप इस 30 डेज़ में भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो अपने टैक्सेस का, ड्यूज़ का, तो जो भी है गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को क्या कर देगी, सेल कर देगी। नॉट विजिबल, सॉरी फॉर दैट। ओके, क्या कर देगी, आफ्टर 30 डेज सेल कर देगी। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट इज कि और क्या कर सकती है गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टीज़ के साथ में। गवर्नमेंट जो है वो जो भी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है ना, क्योंकि देखो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारा लैंड रेवेन्यू का हिस्सा है। लैंड रेवेन्यू के अरियर्स के जैसे डिपार्टमेंट जाके बोलेगा कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से, ओके, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से क्या बोलेगा डिपार्टमेंट जाके कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से कि कलेक्टर साहब, आज जिस तरह से आपके लैंड के रेवेन्यूज़ अरियर में होते हैं उसी तरह से ये जो पर्सन है जिसका लैंड आपके डिस्ट्रिक्ट में है, इसने हमारे को टैक्स नहीं पे किया है, हमारे को पेनल्टीज़ नहीं पे करी हैं। तो जस्ट लाइक द वे द लैंड रेवेन्यूज़ के अरियर होते हैं, उसी टाइप से हमारे टैक्सेस के अरियर हैं। तो कलेक्टर से दे विल टेल देम टू असिस्ट देम कि वो कैसे रिकवरी प्रोसीडिंग्स में हेल्प करेंगे। ओके, जस्ट लाइक द वे दे आर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम द कलेक्टर, दे कैन ऑल्सो आस्क by the way of application से they can also ask the appropriate magistrate okay। आफ्टर दैट जो भी हमारे पास में बॉन्ड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको भी वो लोग क्या कर सकते हैं, हमको एनफोर्स कर सकते हैं कि आपके पास में जो भी बॉन्ड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उनको बेचो, सेल करो, एग्जीक्यूट करो। आप एग्जीक्यूट करने से जो पैसा आएगा वो उससे रिकवरी करेंगे। और आपके कोई भी अगर CGST के जो अरियर्स हैं और CGST और SGST के जो भी अरियर्स हैं उसको भी वो लोग एज अ रिकवरी प्रोसीडिंग्स में यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास में 8 मोड्स ऑफ रिकवरी हो गए, है ना। एक बार हम लोग फिर से करते हैं। कोई भी ऐसे ड्यूज़ जो गवर्नमेंट से हमको पैसे लेने थे, वो गवर्नमेंट अब हमको पैसे नहीं देगी, और जो गवर्नमेंट हमारे पैसे है उसको रिकवरी प्रोसीडिंग्स में यूज़ कर लेगी। हमारे गुड्स को जो गवर्नमेंट है वो डिटेन करके बेच देगी। हमारे जो डेटर्स हैं उनसे गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट कर लेगी। जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, उसको गवर्नमेंट अपने अंडर में 30 डेज़ तक रखेगी, और अगर हमने 30 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे तो वो सेल कर देगी उसका टाइटल को। जो भी कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट्स का, जैसे कि लैंड रेवेन्यू में अरियर्स होते हैं, उसी टाइप से दे विल आस्क दी हेल्प फॉर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू हेल्प देम इन कलेक्शन ऑफ द रिकवरी। और सेम तरीके से वो एप्लीकेशन दे सकते हैं टू द अप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट। वो हमारे पास में जो भी बॉन्ड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और उससे आने वाले पैसों को वो लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो भी हमारे CGST SGST के अरियर्स हैं रिकवरी के दौरान में, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। I hope you are enjoying this revision session, and if you are understanding all this, I would please request you all to like it, to comment down below, so that I will know that if I'm reaching it right, if I'm teaching it right and I'm reaching it right, both the things. Now in the case of payment of taxes, when I do the payment of taxes, okay, अगर मुझे लमसम अमाउंट में मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मुझे पेमेंट कर पाऊँ मैं, तो मैं 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकती हूँ। 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ही क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही टाइम पीरियड मिलता है, और अगर आप एक भी इंस्टॉलमेंट मिस करते हो तो द डेट यू मिस द इंस्टॉलमेंट यू आर लाइबल टू पे द होल अमाउंट ऑफ टैक्स। उसके बाद में एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग, क्योंकि हमको पता है कि हम पे अब रिकवरी की प्रोसीडिंग्स जो हैं जो स्टार्ट हो गई हैं, इसके कारण हम अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं विदाउट कंसिडरेशन और इन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो भी हम ये मानते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो हमने किसी को ट्रांसफ़र नहीं करी है। जो डिपार्टमेंट है इट स्टिल यू हैव ट्रांसफर्ड, बट दे विल कंसिडर इट एज योर ओन प्रॉपर्टी। ओके, आफ्टर दिस हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट को हमारे ड्यूज़ इन्हांस करना है, आपने रिकवरी प्रोसीडिंग सब कुछ कर लिया ना, गवर्नमेंट वांट्स के वो क्या करेगी, हमारे व्यूज़ को, हमारे ड्यूज़ को इन्हांस करेगी। तो व्हेन दे विल इन्हांस, in that case they will issue new notice, and in the case अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उनको रिड्यूस करने हैं हमारे ड्यूज़ को, in that case there will be no issue of new notice। ओके, तो इस केस में क्या कर देगी गवर्नमेंट, इस केस में क्या करेगा डिपार्टमेंट, सिर्फ हमको एक इंटीमेशन देगा, सिर्फ और सिर्फ एक हमको इंटीमेशन देगा। आई होप दिस मच इज क्लियर। ओके,